ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ زندہ خدا کی پرستش کرنی. ہاللیلویا. اور جو آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام پاک میں سے وہ پرستش کے تعلق سے سیکھیں گے. اور جب ہم کلاس کے اندر ہوتے ہیں، جو ٹیچر ہے چاہے اکیڈمی کا ہو چاہے اسکول کا ہو، وہ جانتا ہے میرے اسٹوڈنٹ میں کن چیز کی کمی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہ میتھ میں بڑا کمزور ہے، اس فزکس میں بہت کمزور ہے، اس کی سائنس، اس کی آرٹس جو بہت کمزور ہے. یہ انگلش یاد کر لیتا ہے پر اردو اس سے یاد نہیں ہوتی. یہ سارے سبجیکٹ میں نمبر 1 ہے پر میتھ میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہے. اور خدا نے بھی آج پر آپ پر نظر کی ہے. اور جتنے ہم اس جگہ پر موجود ہیں، ہم ایک خدا کی کلاس میں کیا ہے؟ ہم موجود ہیں. ہاللیلویا. ہم کون سی کلاس میں موجود ہیں؟ خدا کی کلاس کے اندر ہم موجود ہیں، جہاں اٹینڈنس بھی لگتی ہے، حاضری بھی لگتی ہے، رول کال بھی لگتی ہے. اور خدا اس وقت دیکھتا بھی ہے کہ اس کی لیو کتنی ہے، اس کے آف کتنے ہیں، یہ کتنی ٹائم پر آیا ہے اور یہ کب جاتا ہے. ہاللیلویا. کچھ عرصہ پہلے اب کووڈ کی وجہ سے یہ جو تھم والی حاضری تھی، اٹینڈنس تھی، یہ ختم ہوگی. بایو میٹرک یعنی کو اس کو حاضری لگتی تھی جتنے ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور یہ جب حاضری لگتی تھی اس سے پتا چلتا کتنے بجے آ رہا ہے. ان اور آؤٹ آپ نے ضرور کرنی ہے. اور اسی طرح جب آپ خدا کی پریزنس میں آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کی بایو میٹرک والی جو حاضری اٹینڈنس کاؤنٹ کی جاتی ہے. اور خدا کے جب آپ حضور میں آتے ہیں، وقت کو لکھا جاتا ہے، اتنے بجے آیا، اتنے بجے گیا. اور اس کے ساتھ خدا دیکھتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے اندر کس چیز کی کمی ہے. کوئی بتا سکتے ہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہاللیلویا. وہ کمی کیا ہے کہ جب پرستش کا کہا جاتا ہے، میٹنگ پریزائڈر ہو، چاہے بیٹی ہو، بیٹا ہو، ورشپر ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہے جب ورشپ کی جائے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیجئے. آئیے اپنے آپ کو قدموں پر ہم کھڑے ہوں گے اور خدا ان کے پرستش کریں گے. آئیے خدا کے نام کو مبارک کہیں گے. آئیے اپنے منہ کو کھولیں گے، اپنی آوازوں کو بلند کریں گے. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرستش ہم نہیں کرتے. اور جو آج کا مضمون ہے وہ بھی یہ ہے، ورشپ آف گاڈ، خدا کی پرستش کرنا. ہاللیلویا. ہم خدا کی پرستش کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. اور خدا نے بھی زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں جس چیز میں کمزور ہے، آج خدا آپ سے چاہتا ہے. خدا نے وہ مجھے کلام کیا، مجھے دیا، اور آج میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. خدا آج آپ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پرستش کرنی ہے. کیسے پرستش کرنی ہے؟ روح اور سچائی کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ پرستش کرنی ہے. بائبل بیان کرتی ہے خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرستش کرتے ہیں. روح اور سچائی کے ساتھ، سچے من کے ساتھ، جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ میرے سامنے پیش کرتے ہیں. جو میرے سامنے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر کرتے ہیں. خدا پرستش سے خوش ہوتا ہے. جب آپ پرستش کرتے ہیں، آسمان پر میرا اور آپ کا خدا وہ جھوم اٹھتا ہے کہ آسمان پر تو میری پرستش کی جاتی ہے، پر زمین پر جن کو میں نے بنایا ہے، جن کو میں نے اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے، وہ بھی زمین پر کیا کر رہے ہیں؟ میری پرستش کر رہے ہیں. جب ہم پرستش کرتے ہیں وہ تخت نشین ہو جاتا ہے. جب پرستش کرتے ہیں وہ جھوم اٹھتا ہے. جب ہم پرستش کرتے ہیں وہ ہمیں برکت دیتا ہے. جب ہم پرستش کرتے ہیں ہمارے جسم میں سے کمیاں، کمزوریاں جاتی رہتی ہیں، اور پرستش کا وسیلہ سے خدا کا پاک روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کام ہوتا ہے. اگر پرانے عہد نامہ میں سے اگر ہم دیکھیں، ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جب لوگ جو پرستش کرتے تھے تو ان کے پرستش کرنے کے وسیلہ سے، وجہ سے مسبح کے اوپر ایک آگ سی آ جاتی تھی. آگ لگ جاتی تھی مسبح کے اوپر. کس وجہ سے؟ پرستش کرنے کے وجہ سے. جب وہ پرستش کرتے مسبح پر آگ لگتی. اور آج ہم سیکھیں گے ورشپ کے تعلق سے، پرستش کے تعلق سے. اور ایک لفظ ہے انگلش میں جسے کہا جاتا ہے ورشپ. کیا جاتا ہے؟ ورشپ نہیں، ورشپ. اس کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا، عقیدت کے ساتھ سجدہ کرنا،
دینا, حمد ستائش کرنا, آنر دینا, یہ ورشپ یعنی کہ کسی کو عقیدت عزت دینا, سجدہ کرنا, یہ ہے کہ ہے ورشپ ہے جسے انگلش زبان میں کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے آج ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم کیا کریں, اس کی پرستش کریں. اگر کوئی بھی چیز خدا, اگر ہم گھر میں اگر کوئی چیز بنائیں, اگر کوئی فائدہ نہ دے تو ہم کیا کرتے ہیں, ساتھ رہے گا, ہم کیا کرتے ہیں, اس کو سالن بنائیں جتنا مرضی مزیدار کیوں نہیں, کوئی ساگ سمجھنا کیوں نہیں ہے, اگر خراب ہو گیا, اگر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں, ہم اس کو کیا کریں, اٹھا کر پھینک دیں گے. تو آپ کے خدا نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد کیا ہے, آپ نے کیا کرنی ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, آپ نے اس کی پرستش کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے کیا کرنا ہے, پیش کرنا ہے. اور آئیے ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلا یہ جو لفظ ہے, ورشپ کا لفظ ہے, پرستش کا لفظ ہے, یہ کس جگہ پر آیا. اور آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے سے نکال سکتے ہیں. آئیے ہم سیکھنے کے لیے ہم بائبل مقدس میں جائیں گے. بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے اور مطالعہ کریں گے اور خداوند کے کلام پاک میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 5 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. اور میں درخواست کروں گا سسٹر سویرا سے کہ وہ ریڈ کریں گے, بڑے غور سے سنیے گا. 22 باب, پیدائش کی کتاب 22 باب اور اس کی 5 آیت. یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے, تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا, تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. آمین آمین آمین. ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام پاک میں سے, بڑے غور سے پھر سے سنیے گا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا, تم یہیں گدھی کے پاس ٹھہرو, میں اور یہ لڑکا یعنی کہ میں اور میرا بیٹا ہم ذرا وہاں تک جاتے ہیں. کہاں تک جاتے ہیں, اس مذبح پر جاتے ہیں جہاں پر وہ قربانی کرنے کو تھا. اور لکھا ہے, اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس آئیں گے. آمین. سجدہ کرنے کے بعد پھر تمہارے پاس آئیں گے. یہاں پر جو سجدہ لفظ ہے یہ پرستش کو ظاہر کرتا ہے. کس کو ظاہر کرتا ہے, یہ پرستش کو ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس کے اندر سب سے پہلے جو پرستش کا لفظ استعمال کیا گیا وہ پیدائش کی کتاب کے اندر 5 باب اس کی 22 آیت کے اندر, 5 باب اس کی 22 باب کی 5 آیت کے اندر یہ لفظ ہمیں نظر آتا ہے, سجدہ کا لفظ. ابراہیم کیا کہتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں, اس مذبح پر جاتا ہوں خدا سے بات کرنے کے لیے, خدا کی پرستش کرنے کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو خداوند کے حضور میں نظر کرنے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے, پیش کرنے کے لیے وہ اس جگہ پر جا رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر جا کر کیا کرتا ہے, خداوند کی پرستش کرتا ہے. اس کی پرستش کرنے کے وسیلہ سے کیا کیا, خدا نے اس کی زندگی کے اندر ایک بڑا کام کیا. وہ بڑا کام کیا تھا, قربانی کرنے کے لیے تو جا رہا تھا, پر قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس مینڈا نہیں تھا, برا نہیں تھا جس کی قربانی کرنے کے لیے جائے. پر خدا کے حضور میں, خدا کے مذبح پر جانے سے اس نے جب پرستش کرنا شروع کی, اس نے جب خدا کو سجدہ کرنا شروع کیا, جب اس نے خدا کو پکارا, اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کے پکارنے سے خدا نے اس کے لیے قربانی کے لیے خدا نے جانور مینڈا برا کیا کر دیا, مہیا کر دیا. اور جب آپ بھی اس کے مذبح پر کیا ہیں, اس وقت آ چکے ہیں, آپ کے جو فیملی ممبر ہیں کچھ گھر کے اندر ہیں, اور آپ ان کو بتا کر یہ آئے ہیں کہ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں, ہم چرچ جا رہے ہیں. اگر آپ بتا کر نہیں بھی آئے تو وہ جانتے ہیں کہ آپ اس کے مذبح پر جا رہے ہیں, اور آپ کیا کرنے کے لیے, اس کی عبادت کرنے کے لیے, اس کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کی پرستش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ میرے اس بات کو غور سے سیکھنا ہم نے آج کہ پرستش کے وسیلہ سے کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر کام ہوتا ہے. اگر بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب میرا اور آپ کا یسوع المسیح کہ جب ہم پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم مناتے ہیں, تو بائبل بیان کرتی ہے کہ چرواہوں نے بھی کیا کی,
मेरे साथ रहेगा। आपने भी क्रिसमस मनाया, साल नहीं हो गया आपको मनाए। जब चरवाहे जो थे, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो क्या कर रहे थे? सिजदा कर रहे, प्रस्तिश कर रहे थे। प्रस्तिश के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या की? प्रस्तिश करना शुरू की। फरिश्ते आसमान पर क्या करते हैं? उसकी प्रस्तिश करते हैं। और जमीन पर हम भी क्या करते हैं? उसकी प्रस्तिश करते हैं। आसमान पर जो काम सौंपा गया है फरिश्तों को, वो प्रस्तिश करने का है। और जो जमीन पर मेरा और आपके खुदा ने हमें काम सौंपा है, वो क्या है? वो भी ये है कि आपने क्या करना है? जमीन पर क्या करना है? मेरी प्रस्तिश करनी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो हमें पता चलता है जो मजूसी थी, जिन मजूसियों ने भी क्या की? खुदावंद की प्रस्तिश की। क्या की? खुदावंद की प्रस्तिश की। और हमें भी क्या करना है? जब खुदावंद के हुजूर में आप आते हैं तो आप क्या करें? उसकी प्रस्तिश क्या करें। आइए जिनके पास बाइबल मुकद्दस से मेरे से निकालेंगे सबूर 100 और इसकी 2 आयत पर हम गौर करेंगे। सुनिएगा कि ज़बूर 29 आज आपसे क्या कहता है। जल्दी से खुदावंद के कलाम पाक में लिखा है, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। आमीन, हालेलुया। क्या करना? खुशी से उसकी गाते हुए उसके हुजूर में। जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, बाइबल मुकद्दस बयान कर रही है, हम जो सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर से सीख रहे हैं प्रस्तिश करने के वसीला से, कि सीख रहे हैं कि प्रस्तिश में करने करने की जरूरत है। जब हम खुदावंद के हुजूर में हम आते हैं, फिर से पढ़िएगा, गौर से सुनना है। आज हमें सीखना है और आज हम सीखेंगे और इसके बाद हम करेंगे कि खुदा ने हमें प्रस्तिश हमें कैसे करनी है। दोबारा से पढ़िएगा, गौर से सुना है। खुशी से खुदावंद की इबादत करो। आमीन। खुशी से क्या करना है? उसकी इबादत करनी है। जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, हमें खुशी के साथ इबादत करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जब प्रस्तिश के हो रही होती है, आप तालियां नहीं बजाते, आप खामोशी से ऐसे बैठे होते हो, आप अपने मुंह को हमने बंद किया होता है। गीत कोई नया नियम गा रहे, गीत इंग्लिश में नहीं गा रहे, कोई गैर जुबान में नहीं गा रहे, कोई दूसरी अरबी जुबान में फारसी में नहीं गा रहे। हम सुनकर क्या कर सकते? हम उसे गा सकते हैं, पर क्या है? इब्लीस हमारे मुंह को बंद कर देता है ताकि खुदा के हुजूर में तो हम आ गए हैं, पर अब तुम आ गए हो और आकर क्या करो? आप बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव ना करो, आप खुशी से उसकी इबादत ना करो, बल्कि हम जब आते हैं हमारे चेहरों के ऊपर उदासी होती है, हम परेशान होते हैं। हो सकते है कुछ बीमारियों की वजह से आप परेशान हो सकता है दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर आप जिंदगी बसर करो, पर बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? हर वक्त क्या रहो? आप खुश रहो। हम जब खुदा के हुजूर में आए, हमें हर वक्त, हर घड़ी, हमें हर लम्हा हमें खुश रहने की जरूरत है। खुशी के साथ उसकी इबादत करनी है, नाचते हुए उसके हुजूर में जाना है, दाखिल होना है, उसकी इबादत करनी है। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें तो दाऊद क्या करता था? दाऊद के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटी पाई जाती थी, उसके अंदर बड़ी खूबियां पाई जाती थी। दाऊद क्या करता था? वो नाच कर खुदा की प्रस्तिश करता था। दाऊद क्या करता था? वो गाकर खुदा की प्रस्तिश करता था। दाऊद क्या करता था? वो डांस करके खुदावंद की प्रस्तिश करता, वो दुआ करके खुदावंद की प्रस्तिश करता, अपने आप को खुदा के हुजूर में झुका कर क्या करता? वो खुदावंद की प्रस्तिश करता। और आज हमें भी क्या करना है? इसी तरह खुदावंद के हुजूर में दाऊद की तरह में प्रस्तिश करने की जरूरत है। और जब हम दाऊद की तरह प्रस्तिश करेंगे तो मेरा और आपका खुदा अपने स्वर्ग को छोड़ेगा, आसमान को छोड़ देगा, जमीन पर हमारे दरमियान में तख्त नशी होगा और वो क्या करेगा? हमें बरकत देगा। आमीन, आमीन। और वो क्या करेगा? हमें बरकत देगा। और दाऊद जब उसकी प्रस्तिश को देखकर, उसके गाने बजाने को देखकर खुदा ने देखा कि ये जो दाऊद है ये बड़ी अच्छी प्रस्तिश करता है, ये नाचता बहुत अच्छे तरीके से नाच कर प्रस्तिश करता है, ये बड़ी अच्छी इसकी आवाज है, बड़े अच्छे तरीके से गाकर खुदा की प्रस्तिश करता है। और ये क्या करता है? ये दुनिया की परवाह नहीं करता, दुनिया की फिक्र नहीं करता कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, दुनिया मुझे क्या कहेगी। उसकी बीवी से कहती है कि तू कैसे डांस कर रहा है, तू कैसे तू नाच रहा है, कैसे तू झूमकर खुदा की प्रस्तिश कर रहा है, तू तो बरहना हुआ जा रहा है। उससे कहा मैं क्या करूंगा? मैं तो सीधा खुदा की प्रस्तिश करूंगा। और आप भी क्या कीजिए? आप दाऊद की तरह प्रस्तिश किया करें, नाच कर गा कर आप उसकी प्रस्तिश करें। कभी आप इंडिया के अंदर देखिए, दूसरे ममालिक
के अंदर देखें, वो जितने भी प्रस्तिश करते हैं, कोई नाच कर गा कर उसकी प्रस्तिश कर रहा है, कुछ चेयर्स पड़ी होती है, उसके ऊपर खड़े होकर वो झूम रहे होते हैं, डांस करते हैं, वो इस कदर उछलते हैं, देखते हैं, लोग देखकर हो सकते हैं कोई पाकिस्तानी देखे उनको बुरा भला कहता, पर वो इस कदर खुदा के पाक रुल्क क्या हो जाते हैं, वो मामूर हो जाते हैं, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, उनके अंदर जो क्वालिटी नजर आती है, जो खूबी नजर आती है, वो दाऊद नबी की तरह नजर आती है। और खुदा ने ऐसे दाऊद के लिए फासले बयान कर दिए कि दाऊद तू मेरे क्या है, दिल के मुआफिक, दाऊद तू मेरे दिल के मुआफिक। क्यों मिल गया दाऊद खुदा के दिल के मुआफिक? क्योंकि दाऊद क्या करता, सच्चे मन के साथ, किसी दबाव में नहीं कि मुझे मेरे पास कोई विजिट करेगा, उसने मुझे दावत दिया है, मैं फिर जाकर उसकी प्रस्तिश करूंगा, नहीं। उसने क्या किया, सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ उसकी प्रस्तिश को खुदा ने आसमान पर देखा और ये कहा कि तुम्हारे दिल के मुआफिक मिल गया है। और इसके साथ खुदा ने उसके लिए एक और बात, उसके लिए खुदा ने एक और बड़ा इंतजाम किया, खुदा ने उसे बादशाह बना दिया, खुदा ने उसको चुन लिया अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए उसने चुन लिया। खुदा आपको भी क्या करना चाहता है, आपको चुनना चाहता है। हम समझते हैं ये सिर्फ प्रस्ताव है, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ उसने प्रस्तिश करनी है। अब ये मायने नहीं रखता आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज बुलंद होगी, माइक होगा, आप अच्छा गा सकेंगे, फिर आपकी प्रस्तिश आसमान पर कबूल होगी, नहीं। आप जैसा भी गा सकते हैं, आपकी जैसी भी आवाज क्यों नहीं है, पर आपको बनाया किसने है? आपको किसने बनाया है? खुदा ने बनाया है। और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह सूरत पर बनाया है। आपकी जैसे भी आवाज है, आप गाया करें, बुलंद आवाज से गाया करें। हम सिर्फ यही सोचते हैं, हम ये कहते हैं खुदा दिलों में जानता है, खुदा राम ने कीते हुए प्रस्तिश खुदा कबूल करता है। अगर खुदा आराम से की गई प्रस्तिश को, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं अगर बुलंद आवाज से दुआ ना भी करेंगे तो खुदा दिल को भी जानता है, मन की मुरादें जानता है। उसके कलाम में लिखा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। अगर खुदा आपकी मन की मुराद को जानता है, अगर आप सोचते हैं मुझे दिल में दुआ करनी है, मुझे आराम से प्रस्तिश करनी है, तो फिर खुदा ने हमें जुबान ना ही देता, फिर हम गूंगे रहते, गुनाह भी नहीं करते, गालियां भी ना देते। ऐसी बात है ना? खुदा ने ये जुबान किस लिए दी है? ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें। अगर किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाए, हम उससे बड़ा बुरा भला कहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी हम छोड़ते हैं। पर जब प्रस्तिश की बात आती है तो क्या किया करें, अपने मुंह को खूब खोला करें। उसके कलाम में पाक में लिखा, अपना मुंह खूब खोल। कितना खोल? खूब खोल। तो मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा? मैं बरकतों से भर दूंगा। अगर अब तक बरकतों से हमारा मुंह भर नहीं पा रहा, अगर हम बरकत नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि हमने अपने आप को क्या किया, खुदा के सामने पेश नहीं किया, हमने खुदा के सामने अपने आप को सिजदा नहीं किया। हमारे अंदर कमी है। कमी क्या है कि हम दाऊद की तरह प्रस्तिश नहीं करते। कमी क्या है कि हम सच्चे मन से प्रस्तिश नहीं करते। बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं प्रस्तिश के वसीले से कैसी कुवत, कैसी बरकत मिलती है। हम देखते हैं प्रस्तिश के अंदर कैसी कुवत और ताकत पाई जाती है। अगर जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं, आप घर जाके इसको रीड कर सकते हैं। हम देखते हैं अमाल की किताब, उसके 16 बाब उसकी 16 आयत के अंदर से हमें एक स्टोरी नजर आती है पलूस और सिलास की। पलूस और सिलास क्या करते हैं, कैद के अंदर डाला जाता है, हाथ पांव में बेड़ियां, चेनों से, सगड़ियों से बांध दिया गया, उनको जुल्म से सितम किया गया है। पर वो फिर भी क्या कर रहे हैं, कैद के अंदर भी क्या कर रहे हैं, सोए हुए, नाइट ड्यूटी करके सोए हुए क्या कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। अब मौजूद रहे इस जगह पर, हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रस्तिश कर रहे हैं रात के पहर। ये नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने जुल्म को सितम किया है, हमें मारा है, हमारी हड्डियां तोड़ दी है, पर वो फिर भी क्या कर रहे हैं, खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। वो किस लिए प्रस्तिश कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं जिस खुदा ने हमें इस दुनिया पर भेजा है, बनाया है, जब हम उसकी प्रस्तिश करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जारी करेगा। और बाइबल बयान करती है उनकी प्रस्तिश करने के वसीला से क्या हुआ, जेल की नींद क्या हो गई, हिल गई। उनकी बेड़ियां क्या होगी, खुल गई। और वो क्या, खुदा उनकी प्रस्तिश कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रस्तिश के अंदर क्या है, कुव्वत और ताकत। हालेलुया। ये प्रस्तिश के अंदर क्या है, कुव्वत और ताकत है। जब कभी भी आप देखें, कभी किसी के अंदर इवल स्पिरिट का केस आएगा ना, सबसे पहले खादम क्या करेगा, आइए अपनी आंख को बंद कीजिए, आइए खुदा के तख्त को इस जगह पर मांगेंगे,
आइए उसके मसवा को इस जगह पर मांगेंगे। आइए खुदा से कहेंगे, खुदा हम अपने आप को पीछे करते हैं, हम तुझे आगे करते हैं। आइए कोयर के साथ प्रस्तिश करेंगे, अपनी आंख को बंद करेंगे, उससे अपनी जिंदगियों को पर मांगेंगे, उससे आसमान पर से जमीन पर हम पुकारेंगे और कहेंगे, खुदावंद आप इस जिंदगी को, आप इस बेटे को, आप इस बेटे को आजाद कीजिए। प्रस्तिश जैसे करना शुरू होंगे, चाहे वो वर्शिप पर जो हो ज्यादा टाइम दुआ करने वाला हो या ना हो, पर प्रस्तिश जो है ये खुदा का कलाम होता है जो हम करते हैं। प्रस्तिश जब की जाती है, उसका नाम जब लिया जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो इवल स्पिरिट होती है उन्हें क्या हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है, कानों पर हाथ रखती है और कहती है कि इससे रोक दो, बंद कर दो। सांस बजा कहती है बंद करो इसको, मुझे जान दो। क्यों? क्योंकि प्रस्तिश के अंदर क्या है, एक मसा है, एक कुवत है, एक आग है, और जब उस आग को हम इस जगह पर लगाते हैं तभी क्या होता है, हमें बरकत होती है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कहते हैं प्रस्तिश गुजर जाए, घंटा को लंघ जाए, प्रस्तिश खत्म हो जाए, फिर इसी करांगे खुदा के कार्य जमाएंगे। ऐसी बात है ना, तो फिर मेरा और आपका खुदा मेन जो अपने जो एक मसवा तैयार करना था वो वर्शिप के वसीला से कर रहा। हमने वर्शिप को मेन जो सेशन को क्या कर दिया, हमने मिस कर दिया। अगर हम कहें हम क्लास के अंदर जाएं, अगर हम टीचर हमारी हमने मैथ कोई भी अब सीखते हैं, बच्चे जितने भी हैं, बड़े भी, आप भी उसने स्कूल में जाते हो, गए हो पहले और अब नहीं जाते, तो अगर हम देखें, अगर हमें पढ़ाया जाए, अगर हम पढ़े, हम मेन चीजें हम छोड़ दें, अगर हम स्टडी छोड़ दें, अगर हम पढ़े ही ना और हम कहें कि हम क्या कर जाएं, हम पेपर देने के लिए चले जाएं, तो हम क्या होंगे, फेल होंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, 0 मिलेगा। ऐसी बात है ना। तो इसी तरह की जो प्रस्तिश है ये आपको तैयार करती है, ये आपकी रूहानी लाइफ को तैयार करती है। ये प्रस्तिश के वसीले से आपको सुनने वाले कान मिलते हैं, प्रस्तिश के वसीले से आपको कबूल करने वाला दिल अता करता है खुदा, दिल आपको मिलता है, कबूल करने वाली जिंदगी आपको मिलती है। प्रस्तिश के वसीले से आप खुदा को आसमान से नीचे उतारते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आकर क्या कीजिए, आप हमें बरकत दीजिए, आप हमें ब्लेस कीजिए। और आइए बाइबल मुकद्दस के अंदर हम एक और हवाले पर हम गौर करेंगे, देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12 बाब उसकी पहली आयत में हम देखेंगे खुदा के कलाम पाक में इनसे। हालेलुया। जिनको समझ नहीं आ रही जोरदार तारीफ जा दीजिए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। जोरदार तारीफ चाहिए अपने आप के लिए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। जी सिस्टर। फंसे भाइयों, मैं खुदा की रहमत में याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर किया करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। आमीन। हमें अपने जो जिस्म है, अपना आप है, हमें किस तरह अदा करना है, किस तरह हमने अदा करना है, अपने आप को किस तरह हमें पेश करना है। हालेलुया। दोबारा फिर से पढ़िएगा। बस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ। आमीन आमीन। बस है भाइयों, मैं तुमसे क्या करता हूँ, खुदा की रहमतें याद दिलाकर क्या करता हूँ, मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ, अर्ज करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, अपील करता हूँ कि तुम क्या करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। कैसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, प्रस्तिश करने के लिए, कलाम पाक को सुनने के लिए अपने बदन को क्या करो, आप तैयार करो, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, जो जिंदा और पाक और खुदा को क्या हो, पसंदीदा हो। आपको क्या ऐसी प्रस्तिश करनी है, ऐसी इबादत करनी है जो जिंदा खुदा को क्या हो, पसंद हो, वही आपकी क्या होगी, मकबूल इबादत होगी। आपने क्या करना है, जब खुदा ने हमें हाथ दिया है, अगर किसी के पास कोई चीज ना हो, मजबूरी है, पर खुदा ने हमें हाथ दिए हैं, क्या करना है, उसकी प्रस्तिश करनी है, अपने हाथ को इस्तेमाल करते हुए उसकी प्रस्तिश करनी है और खुदा से कहना, खुदा तू क्या कर, हमें बरकत दे, हमारी जिंदगी के अंदर काम कर। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, सैमुएल की किताब के अंदर, तो हमें एक बड़ी खूबसूरत एक स्टोरी नजर आती है कि जो साउल था उसके ऊपर एक बुरी स्पिरिट आ गई। वो बुरी स्पिरिट क्या थी, वो बुरी रूह क्या जो थी, वो खुदावंद की तरफ से थी। और यसी के खानदान में से एक नौजवान लड़का था जो बहुत खूबसूरत था, वो कौन था, दाऊद था। और जो साउल के ऊपर जो बुरी स्पिरिट थी, गौर से सुनिएगा,
ये जो बुरी स्पिरिट थी, नापाक रूह थी, ये खुदावन की तरफ से थी जो साउल के ऊपर आई थी। और साउल के ऊपर इसलिए आई थी क्योंकि साउल जो था उस पर जो खुदा का जो पाक रुद्र था, जो खुदा की प्रेजेंस थी, जो खुदा की हजूरी थी, वो साउल से जब जुदा हो गई, उसके ऊपर जो खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आ गई। और साउल के जब बुरी रूह आ गई तो वो अपने मुलाजिमों से कहने लगा कि मेरे लिए क्या करो, कोई गाने बजाने वाला ढूंढो, मेरे लिए कोई अच्छा गाने बजाने वाला ढूंढो जो आकर क्या करे, इस जो रूह है, जो नापाक रूह है, जो बुरी रूह है, इसे क्या कर सके, इससे निकाल सके। और मुलाजिमों ने क्या किया, उन्होंने कहा हाँ, एक हमें नजर आता है, एक लड़का हमें पता चलता है जो क्या है, बड़ा एक खूबसूरत नौजवान है, जो अच्छा गाने वाला है, अच्छा बजाने वाला है, जो रूह और सच्चाई सिखाने वाला है, उसकी प्रस्तिश करने वाला है, वो दाऊद है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, जब दाऊद उस जगह पर पहुंचा, यसी के खानदान में से खुदा ने दाऊद को चुना, अपनी खिदमत के लिए चुना, खुदा ने उसे चुना। और चुनने के बाद खुदा ने उसे कैसा इख्तियार दिया कि वो प्रस्तिश करने के वसीला से जब साउल के पास गया, तो बाइबल बयान करती है कि उसके पर्वत बजाने की वजह से, उसके प्रस्तिश करने के जाने से, उसके सांस बजाने से क्या हुआ, प्रस्तिश करने से क्या हुआ, उसके अंदर से वो जो नापाक रूह थी वो जा फिरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमारे अंदर से भी नापाक रूहें हैं। ये नहीं जो नापाक रूह जाहिर हो वही नापाक रूह है, नापाक रूह वो भी है जो आपको क्या करती है, आपको प्रस्तिश करने से आपको रोकती है, आपको खुदा के घर में आने से क्या करती है, रोकती है, आपको खुदा की इबादत करने से रोकती है, बाइबल को पकड़ने से आपको क्या करती है, रोकती है, प्रस्तिश करने से आपको रोकती है, तालियां बजाने से आपको क्या करती है, रोकती है, खड़े होने से क्या करती है, आपको रोकती है। आपने खड़े नहीं होना, आप क्यों नहीं खड़े हुए, बस हम नाराज होना, मेरी ना कमर दर्द है। हालेलुया, मेरी क्या है, कमर का दर्द है। पर जिस खुदा के हुजूर में हम आए हैं, जिसके सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो क्या वो खुदा हमारी बीमारियों को, परेशानी को नहीं जानता, जानता है। वो कहता है कि तू लाइक और वाजिब तरीके से कर मेरी प्रस्तिश कर। उसके कलाम में बात मिल गया, जहाँ सांस और आवाज एक हो जाते हैं, वहां खुदा का अपर छा जाता है, उसका तख्त लग जाता है। अगर लूका की अंजील के अंदर देखें, हम उसके 7 बाब के अंदर देखें और 32 आयत से लेकर अगर हम 50 आयत तक हम देखें, तो हमें एक स्टोरी नजर आती है कि एक बदचलन औरत है। वो बदचलन औरत है, जो ज़िनाकार औरत है। वो मेरा और आपका यीशु मसीह शिमौन फरीसी के घर में जाता है, खाने के लिए जाता है, उस जगह पर बैठता है और एक बदचलन औरत आती है, वो संगमरमर का अतर लेकर, जो एक कीमती अतर है, और वो आकर क्या करती है, यीशु मसीह बैठे होते हैं और वो आकर क्या करती है, अपने आंसू पहले वो रोती रहती है, रोती है, आंसू बहाती है और कीमती अतर को यीशु के पांव पर वो छिड़कती है, लगाती है और आंसू के साथ अपने यीशु के पांव पर गिराती है, गिरना शुरू हो जाए। आंसू के साथ वो खुदा के हुजूर में यीशु मसीह के सामने पेश होती है और रोना शुरू हो जाती है। अपने बालों से क्या करती है, यीशु के पांव को पहुंचती है। उसका रोना, ये जो आपका रोना है खुदा के हुजूर में, ये भी क्या है, आपकी प्रस्तिश है। और बाइबल बयान करती है, जो आंसू के साथ बोलते हैं वो खुशी के साथ क्या करते हैं, काटते हैं। उस औरत ने क्या किया, आंसू के साथ यीशु के पांव को छूना ना छोड़ा, साफ करना ना छोड़ा, आंसू के साथ अपने बालों के साथ वो साफ करती, उसकी प्रस्तिश करती। और हमें भी क्या करने की जरूरत है, उसकी प्रस्तिश करने की वसीला से हम बाबरकत। उस औरत ने यीशु की प्रस्तिश की, अपने आप को झुका दिया, गिरा दिया, यीशु के कदमों में गिर गई, घुटनों का बल हो गई और वो जानती थी कि ये यीशु क्या करेगा, मेरे गुनाहों को माफ करेगा। मैं इस यीशु की प्रस्तिश करूंगी। पहले मैं दुनिया की करती थी, मैं गुनाह के अंदर दबी थी, मैं बदकारी के अंदर थी, ज़िनाकारी के अंदर थी। मैं जब अपने यीशु की प्रस्तिश करूंगी तो मेरा यीशु मुझे क्या करेगा, मुझे बहाल करेगा। और यीशु ने भी क्या किया, उसे बहाल किया, उसके गुनाहों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु आज आपके और मेरे गुनाहों को भी क्या करना चाहता है, वो माफ करना चाहता है। वो क्या करते जो चाहता है कि आप क्या करें, उसकी प्रस्तिश करें, सच्चे मन के साथ आप उसकी प्रस्तिश किया करें, नाचते हुए गाते हुए आप उसकी प्रस्तिश किया करें। आप उसकी दुल्हन है, उड़ जाना है, हमने उड़ जाना है। कब उड़ जाएंगे, जब मेरा और आपका यीशु नासरी आएगा, वो हमें ताकत देगा, हमें कुव्वत देगा। आप इस कदर जब प्रस्तिश किया करें, आप अपने आप को बंद करें, आप
दुनिया की तरफ ना देखें, अपना ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ लगाएं। जब आप खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, अपना फोकस लगाएंगे, तो आपका खुदा आपको क्या करेगा? आपको प्रस्तिश के वसीला से क्या करेगा? बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम कैसे प्रस्तिश करेंगे? मिलकर कहेंगे। हम कैसे प्रस्तिश करेंगे? रूह और सच्चाई से। किसकी तरह करेंगे? दाऊद की तरह करेंगे, और पौलुस और सिलास की तरह करेंगे। हालेलुया। और उस बचन औरत की तरह करेंगे जिसने आंसू के साथ क्या की? खुदा की प्रस्तिश की। हालेलुया। आंसू के साथ उसकी प्रस्तिश किया करें, और हमने क्या करना? उसके हसूल में झुकना। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होइए, एलिया की तरह झुक जाया करें। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मत ये समझा करें कि मैं गुनाहगार, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे गलती खता हो गई है। पर याद रखिए, आपका जो खुदा है वो गुनाह को माफ करता है। अगर बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखें तो हमें पता चलता है दाऊद से भी गुनाह हो गया, दाऊद भी खता कर बैठा। दाऊद ने भी देखा कि खुदा की जो हजूरी है, उसकी जो प्रेजेंस है मुझसे जुदा हो गया। आइए अपनी आंखों बंद कीजिए, अपने हाथ बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। दाऊद ने भी देखा कि खुदावंद की जो हजूरी है, उसकी प्रेजेंस है, ये मुझसे जुदा हो गई है, दूर हो गई। उसने अपने अंदर कमी को महसूस किया, चेक किया कि खुदा की हजूरी इस वक्त मेरे अंदर नहीं है, खुदा मेरे साथ नहीं है, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमजोरी है। उसने कमजोरी को, कमी को देखा, और बाइबल बयान करती है उसने अपने टाट तोड़ा, वो घुटनों के बल हो गया, वो झुक गया, उसने अपने आप को सिजदा कर दिया। आइए आप भी अपने खुदा को सिजदा कर दीजिए, सिजदा कीजिए, कहिए खुदावंद हमें बरकत दीजिए। आइए अपने आप को बंद कीजिए। हालेलुया। खुदा के खुदा हमें रूह और सच्चाई के साथ हमें प्रस्तिश करने वाला बना। हम रूह और सच्चाई से खुदा आपकी प्रस्तिश करें, सच्चे मन के साथ खुदा आपकी प्रस्तिश करें, लाइक और वाचक तरीके से खुदा आपकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश के वसीला से हमारे अंदर से कमियां, कमजोरियां यीशु के नाम से जाती रहे। प्रस्तिश के वसीला से आप हमें बरकत दीजिए, आप हमें बरकत दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू कीजिए, आइए सब दुआ कीजिए। मैं चाहता हूं आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आइए सब दुआ करेंगे। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। खुदा की तरह शुक्र हो। आइए नाचते हुए, गाते हुए उसके हसूर में प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। अपने आप को पेश कर दीजिए, उसके सामने अपने आप को पेश कर दीजिए। आइए कहिए खुदा मैं नजर ना हूं, मैं नजर ना हूं, खुदा तू मुझ में नजर आ। हालेलुया, हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 जिंदगी में अब कुछ छोड़ो। हालेलुया।
प्रस्तुति करनी है हमने? जोश के साथ। हालेलुया। कैसी प्रस्तुति करनी है? जोश की तरह। किसकी तरह करनी है? दाऊद की तरह। हालेलुया। नाचते हुए गाते हुए। हालेलुया। हत्था ते लिखी दे ताड़ी बजाना, 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 ताड़ी बजाना कभी भी ना थका, कभी भी ना थका, तू सोने सोने ले ताड़ी बजाना कभी भी ना थका, कभी भी ना थका, तू सोने सोने ले यीशु तेरे कदम हाथ तेरे, कदम हाथ तेरे, तू सोने सोने ले राजा मेरे कदम हाथ तेरे, कदम हाथ तेरे, तू सोने सोने ले यीशु मेरे कदम हाथ तेरे, कदम हाथ तेरे, तू सोने सोने ले तू सोने सोने ले तुझे पुजाना हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा बाइबल नहीं देखते रहे, मुझे पता है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप पर रखे। हालेलुया। हाथ लगा के बताएंगे अच्छा ते लिखी दे बाइबल पढ़ी ना, अच्छा ते लिखी दे बाइबल पढ़ी ना, शाम सवेरे तू सोने सोने कैसे करना है? दाऊद की तरह। हालेलुया। दाऊद जब सांस जाता था तो बदरूही गई। हालेलुया। नपाक स्पिरिट गई। आपकी ताले बजाने से कहूंगी नपाक स्पिरिट जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए जो थक गया जोरदार तालियां बजा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखों बंद कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों बंद कीजिए, अपने सर को झुका दीजिए। हालेलुया। खुदा से कहिए खुदावंद आज मेरा प्रस्तुत करना खुदावंद तुझे पसंद आए। मुझे दाऊद की तरह खुदा प्रस्तुत करने की ताकत और कुव्वत दीजिएगा। मैं लाइक और वाजब तरीके से खुदा आपकी प्रस्तुत करूं। जिस तरह आपकी कला में पाक मेरे का खुदा रूह है और जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करे यीशु के नाम से। तमाम आई हुई जिंदगियां रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करे यीशु के नाम से। आसमानी खुदा में तमाम आई हुई छुपी हुई जिंदगियों के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूँ, ब्लेसिंग को चाहता हूँ। तेरा मसा को, तेरी आग को, तेरी सामर्थ को हर एक जिंदगी पर मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आसमानी खुदा तेरा पाक रूह से कभी से जुदा ना हो। ये दिन ब दिन खुदा
खुश में बढ़े और तरक्की करें यीशु के नाम से। इनके हाथों को ब्लेस कर, इनके आवाजों को ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते सब पा लेते हैं। बुलंद आवाज से कहेंगे, जोर से बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलेंगे, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु के नाम की। आइए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजा दीजिए। सब तशरीफ रखिए, सब बैठिए।